He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका, जो अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, उसकी मदद पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। माना जा रहा था ये शांति वार्ता होगी, लेकिन मीटिंग के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई। Good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. ये बैठक 45 मिनट की थी, जिसके आखिरी 10 मिनट में दोनों नेता एक दूसरे पर उंगली दिखाते हुए नजर आए। We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military. बैठक में कभी ट्रंप फटकार लगाते तो कभी जेलेंस्की तेज आवाज में बोलते दिखे। व्हाइट हाउस के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ जब दो राष्ट्र अध्यक्षों ने इतने तनाव भरे माहौल में बातचीत की। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि जेलेंस्की जो कर रहे हैं वो तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देने जैसा है। And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not You have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what I'm this. not You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influence. इस बैठक का मकसद यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म करने और यूक्रेन अमेरिका में खनिज डील का था, लेकिन मुलाकात किसी बिना नतीजे के ही खत्म हो गई। दोनों नेताओं की बैठक में तनाव उस समय सबसे ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप ने जेलेंस्की से ये कहा कि उन्हें अमेरिकी समर्थन का शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का जुआ मत खेलिए। What you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with all backed you respect, far more than a lot of people said they should have. During ट्रंप ने कहा, आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी अपमानजनक है। जेलेंस्की से अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भी बहस हुई। ये इस हद तक पहुंची कि जेलेंस्की ने वेंस से जोर से बोलना बंद करने के लिए कहा। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President. ये तब हुआ जब वेंस ने कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता है। इस पर जेलेंस्की ने पूछा कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं। इस पर वेंस ने कहा कि आप ओवल ऑफिस में बैठकर अपमानजनक बर्ताव कर रहे हैं। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President. आपने पूरी बैठक में एक बार भी थैंक्स तक नहीं कहा है। बैठक में ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण और बहुत समर्थन दिया है। अगर आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो ये युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो जाता। इस पर जेलेंस्की ने उनको तकरीबन चिढ़ाते हुए कहा कि शायद 2 दिन भी नहीं चलता। ये बात तो मैंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी सुनी है। बैठक के आखिरी में ट्रंप गुस्से में जेलेंस्की से कहते हैं कि लोग मर रहे हैं, आपके पास सैनिक कम पड़ रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि युद्ध विराम नहीं चाहिए। From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you through I this said stupid thank president $350 billion. You voted We gave for you. मैं जंग रोकना चाहता हूँ, लेकिन साफ है कि आप ये नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम की बातचीत यूक्रेन और रूस दोनों के लिए है। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि हम सुरक्षा की गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं।
हालांकि इस घटना ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंधों में एक नई चुनौती को पैदा कर दिया है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। और अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। Did you sign the deal? He's on the phone. telefon,